So hello bachcho. Today we are going to study about the very important and the essential part of our chemistry. That is organic chemistry, and it is holds the most essential part of chemistry in our life. Means if you have to study chemistry further, then you have to study this branch very thoroughly and very widely. So let's get started. Before starting the organic chemistry, I like to tell you about what is organic chemistry. ठीक है? So first of all thing we can say that organic chemistry is very essential part of our life. We can say that organic chemistry, it is very essential. It is very essential part of our life. Okay, and it is very versatile in nature. It is very versatile in nature. We can say that जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो बहुत वर्साटाइल होता है अपने नेचर में. तो हम लोग जो है वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये हमारे लाइफ से ही जुड़ा हुआ है. इट इज़ वेरी एसेंशियली एंड इट इज़ वेरी वर्साटाइल इन नेचर, जिसके वजह से इसके एक अलग कार्बन एंड कंपोनेंट्स, एक पर्टिकुलर ब्रांच है उसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स वर्साटाइल इन नेचर. अगर ये वर्साटाइल नहीं होता तो देयर मस्ट नॉट बी एनी ब्रांच. सिंपल सा होता, हम पढ़ के खत्म कर देते, बट इट इज वेरी वर्साटाइल. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर स्टडिंग द अनदर ब्रांच, ओके, ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कार्बन एंड इट्स components. Carbon and its components. We will study about another branch. इसका हम लोग नाम कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब जो ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वी कैन से इट इज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द सेकेंड वन इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. OC and IOC, organic chemistry and inorganic chemistry. Now we will talk about what is organic chemistry and from where we obtain organic chemistry, and what is inorganic chemistry and from where we are going to obtain the inorganic chemistry. So my dear students, it is very simple to just keep in the mind and to just keep in the words that things that are obtained from the living organisms, things or the compounds that are obtained from the living organisms, they are called as living organisms. They are called as organic chemistry. And simply that will be obtained from non-living, that will be obtained from non-living organisms. They will be called as inorganic chemistry. Very simple. Very simply we have to keep the points very simply, and we all have to come to that organic chemistry, living organisms, inorganic chemistry, non-living organisms. Okay, now what happens, there were some beliefs that the organic chemistry were obtained from some vital force. They are obtained from some vital force. And what the vital force? We can say vital force of vital theory. Okay, so it was obtained that organic chemistry belief was there. कुछ ऐसा लोग मानते थे कि वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी की वजह से ऐसा है, वाइटल फोर्स ऑफ नेचर. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं वाइटल थ्योरी ऑफ नेचर की वजह से ऐसा है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. बाद में इस बिलीफ को ब्रेक कर दिया गया एंड इसको नहीं माना गया. इट वॉज by whom? By German chemist Friedrich Wolmer. In 1828 there was German chemist Friedrich Wolmer. ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं है. क्या करना है कि हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूरिया को लेबोरेटरी में से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया. क्या लिया? NH4CnO. उन्होंने लिया अमोनियम साइनेट. और अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने हीट किया, व्हेन ही अप्लाइड सम हीट टू द अमोनियम साइनेट, देन क्या हुआ, देन हमें CO
NH2 इन ब्रैकेट 2 हमें ऑक्टेन हुआ जो कि हमारा है यूरिया. So when he has taken NH4CNO and it gives CONH2 and 2, ठीक है, then he got urea. So from there he break this theory vital force. Who? जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच. उन्होंने बताया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, हम उसको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट. यूरिया जो क्या हो गया, यूरिया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया. ठीक है, उसके बाद आए कोल्बे भाई साहब. कोल्बे भाई ने बना लिया एसिटिक एसिड. कहां से? हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन से. ही मेड एसिटिक एसिड फ्रॉम द हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. देन थर्ड आए 1856 में बर्थलॉट ने. इन्होंने सिंथेसाइज कर दिया मीथेन को. ही सिंथेसाइज मीथेन. ओके, सो फ्रॉम देयर वी ऑल गॉट टू नो दैट organic compounds that they can be prepared or synthesized from the inorganic compounds या vital force of nature से नहीं हो सकते हैं. From there we got to know that it is essentially the chemistry या organic compounds है जो डील करती है organic chemistry से. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या था, व्हाई इट इज एसेंशियल, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, एंड हाउ वी गॉट टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस वेरी क्लियरली. कार्बन, ठीक है, कार्बन एंड इट्स यूनिक फीचर्स एंड इट्स यूनिक हम कह सकते हैं कैरेक्टर्स. ठीक है, कार्बन और उसके यूनिक कैरेक्टर्स. फर्स्ट थिंग, ये जो होता है कार्बन, ये होता है टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंसी, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी. क्यों भाई भैया, क्यों भैया, क्यों भाई साहब, काहे होता है? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका हमारे पास है एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन. तो ये होता है 6. ठीक है, अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो होगा 2 and 4. तो अब 4 क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू गेन और टू लूज 4 एटम्स, टू आइदर लूज और गेन टू मेक कंप्लीट ऑक्टेट. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ऐसे में क्या कर जाता है, ऐसे में ये टेट्रावैलेंसी फॉर्म करता है और अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता है, वो पॉसिबल नहीं है. इसी वजह से इसको हम टेट्रावैलेंसी नाम देते हैं. ठीक है, और लास्ट में इसके पास ऑप्शन बचता है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो इसी वजह से वी यूज्ड टू कॉल इट एज टेट्रावैलेंसी. सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कैटिनेशन. वी हैव द प्रोसेस ऑफ कैटिनेशन. अब कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन मतलब हम कहेंगे द एबिलिटी ऑफ एन एटम, हम कहेंगे द एबिलिटी of an atom to form covalent bond in order to complete their octet. ठीक है, that will be called as catenation. So dear बच्चों, what we have to understand from this, we have to understand from this very properly and very thoroughly that carbon is having two unique features, that is tetravalency and the second one is catenation. In the tetravalency, what we used to learn or what we used to obtain, that in the tetravalency what we have, carbon is having the 6 as the atomic number, and after doing the electronic configuration we are getting 2 and 4. Okay, and the 4 is very impossible. It is not possible for any atom or any element atoms to take 4 atoms to in order to complete their octet. So that's why the carbon is having tetravalency. It is the unique feature of carbon. The second one we come to the catenation. Catenation is what? Catenation is the ability of an atom to gain or lose their electrons. So that particular ability is called as the catenation. Okay. Now I hope this much is clear. Okay. In the second topic we have to study the hydrocarbons. अब hydrocarbons में हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स हम कह सकते हैं कि पहली बात तो इसके पास हाइड्रोजन भी है और इसके पास कार्बन भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट वे होता है, सिंपलेस्ट वे ऑफ स्टडीइंग हाइड्रोजन एंड कार्बन. ठीक है, जो टुगेदर करके बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो वी हैव टू मूव अबाउट द क्लासिफिकेशन. वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन. अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एलिफैटिक और साइक्लिक. यहीं से एक चीज निकाल लेते हैं. ठीक है, ये हो गया ये, और देन वी हैव यहाँ पे, देन द फर्स्ट थिंग विल बी एलिफैटिक. देन
द सेकंड विल बी साइक्लिक। सो एलिफैटिक जो होता है और जो साइक्लिक होता है, एलिफैटिक को हम लोग कह सकते हैं ओपन, और जो साइक्लिक होता है उसको हम लोग कह सकते हैं क्लोज्ड कंपाउंड्स। तो ये होता है हमारा एलिफैटिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये ओपन कंपाउंड्स होता है और ये क्लोज्ड कंपाउंड्स होता है, ठीक है। अब जो एलिफैटिक होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 थिंग्स। फर्स्ट आपका होगा सैचुरेटेड, सॉरी 2 थिंग्स। फर्स्ट आपका होगा सैचुरेटेड एंड देन सेकंड होगा आपका अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड द सेकंड विल बी अनसैचुरेटेड। ओके, क्लियर? Then saturated will be having, okay, saturated will be having alkane, ANE, formula CnH2n, CnH2n plus 2, this is the formula. Then we have unsaturated, we have what we have alkene, and one more we have alkyne and alkyne. A formula for this one CnH2n alkene. Then this formula we have CnH2n minus 2. ओके, सो क्या पढ़ना है बच्चा? हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशंस में बच्चा पार्टी एलिफैटिक और साइक्लिक में क्या हो जाता है, वो क्लासिफाई हो जाता है। इन दी एलिफैटिक की अगर हम बात करें तो एलिफैटिक में क्या होता है, एलिफैटिक में वो ओपन फॉर्म में रहता है एंड साइक्लिक में वो क्लोज फॉर्म में रहता है, ठीक है। Then we got to know about saturated and unsaturated. Saturated क्या होता है, देखो पहले समझो कि saturated में क्या होगा और unsaturated में क्या होता है, क्यों उसे कहा जाता है। देखो saturated इसलिए हम उसे कहते हैं क्योंकि saturated जो है वो सिंगल एटम कंटेन करेगा, मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन का समूह जो सिंगल एटम कंटेन करता है उसे हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। और ऐसा कंपाउंड्स जो सिंगल एटम्स के अलावा डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये अगर सिंगल बॉन्ड करेगा तो सैचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स करेगा तो इट विल बी इन अनसैचुरेटेड। सो दैट इज व्हाई if it is called as saturated, so we means that it is having the single bonds. If it is called as unsaturated, that means wo it will be having double bonds or triple bonds. So that is why we call it as saturated and unsaturated. अब in this saturated we have alkane. Alkane में वो कैसे है, because alkane is only one which is having the single bonds with the formula CnH2n plus 2. Okay, then we have unsaturated double bonds. Double bond is having with alkene. Okay, CnH2n, the formula is there, and then the triple bond we are having with alkyne, CnH2n minus 2. Okay, so this is how we are going to get this. Then we come to the cyclic. Then cyclic में होते हैं हमारे पास alicyclic and aromatic. Okay, cyclic में हमारे पास होगा alicyclic, and then we will be having aromatic. Okay, अब ये क्या होता है, एलिसाइक्लिक क्या होगा सर एंड एरोमेटिक क्या होगा। देखो वेरी क्लियर, पहली बात तो ये क्लोज चेन होते हैं, क्या होते हैं, क्लोज चेन। तो जब हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो ये कंटेन करेगा 3 कार्बन एटम्स। क्या 3 कार्बन क्या कंटेन करेगा, 3 कार्बन एटम्स क्लोज्ड स्ट्रक्चर में रहेंगे। किस स्ट्रक्चर में रहेंगे, क्लोज्ड स्ट्रक्चर में रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके। सो 3 कार्बन एटम्स in a closed structure that will be called as alicyclic, ठीक है। अब एरोमेटिक, तो एरोमेटिक है भैया, तो इसमें तो बेंजीन रिंग का फॉर्म होना बहुत जरूरी है। बेंजीन रिंग, ठीक है, ऐसे फॉर्म होगा, ऐसे 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 1 2 3 बेंजीन रिंग फॉर्म होगा। तो ये कहा होगा भैया 6 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम्स के साथ 6 कार्बन एटम विद अल्टरनेट 1 एटम्स, 1 एटम्स। तो 6 कार्बन एटम्स के साथ अल्टरनेट भी रहेगा, क्या रहेगा, अल्टरनेट कार्बन एटम्स भी उसमें रहेंगे, ठीक है, अल्टरनेट भी फॉर्म करेगा। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है हाइड्रोकार्बन्स का। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो भैया अल्टरनेट वो डबल बॉन्ड्स के साथ रहता है, ठीक है, देन इसीलिए वो एरोमेटिक कहते हैं। So this is the overall classification of hydrocarbons, जिसमें हम एलिफैटिक और साइक्लिक के बारे में पढ़ते हैं। एलिफैटिक इज दी
open and the cyclic is the closed one. Then we come to study about the saturated and unsaturated. My dear student, I have told you why it is called as saturated, because it is containing a single bond, and why it is called saturated, because it is containing double and triple bonds. Then my dear student, we have understand about the alkane. Alkane is what? Alkane is having a single bond, and that is the formula is CnH2n plus 2. And then we study about the unsaturated compounds. In the unsaturated compound, we will study about CnH2n. Okay, the alkene, it is having a double bonds. Then we will study about the alkyne, which is having CnH2n minus 2. Okay, so this was the classification of aliphatic and the open compounds. Then we will go moving about the cyclic closed compound. Then in the cyclic and closed compound, we came to a study about the alicyclic and aromatic compounds. In the alicyclic, we can say that it is a part of closed compound, but in the closed compound we have 3 carbon atoms. मतलब वो 3 carbon atom के अलावा और कुछ नहीं कंटेन करेगा. And then हमने aromatic benzene के बारे में पढ़ा था कि ये benzene रिंग फॉर्म करेगा. वहाँ पे 6 carbon atom होंगे, फिर alternate double bonds atom. ठीक है, मतलब 6 कार्बन एटम रहेंगे और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स एटम्स रहेंगे. तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वो एरोमेटिक है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, फिर हम आईपीएसी के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स. देन वी विल स्टडी अबाउट द आईपीएसी, कैसे उसको रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड ऑल द अदर थिंग्स कैसे हम निकालते हैं. ओके, टिल देन नोट डाउन दिस एंड लेट्स मूव.